चलो लिटिल बेटर। अच्छा स्क्रीन पे की लिखा हुआ है? बादशाह दरवेश, उच्ची बोलो बच्चे, बादशाह दरवेश। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਯੂ ਆਰ ਐਂਗੇਜਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ 10th ਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हैप्पी बर्थडे, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਬਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਡ ਬਰਥ, ਡੈਥ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਡਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ दैट? ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਐਵਰ ਐਂਡ ਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਵਰਡਸ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ? ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਾਈਵਲ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, the words that we use are ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। So there are many words that you can use rather than using the word birth, ठीक है। Is that clear? हाथ खड़ा करो जी if that's clear, ठीक है। Very good. Okay, another basic thing, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so who was his father? ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ, who was Guru Gobind Singh Ji's mother, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ whatever we already know to learn more out of that, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, to learn something new out of that। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, do you ever get this question ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? Do you ever get this question in your head? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਤਲਵੰਡੀ, ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਸਰ ਕੀ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਹੋ, ਸੋ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਐਵਰ ਗੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਉਦਾਸੀਆਂ? ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਨ ਅ ਬਰੀਫ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਪਲੇਸਿਸ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,
शब्द कल तारण गुरु नानक आया। So there was a purpose why गुरु जी का प्रकाश क्यों होया, there was a purpose, ठीक है। So इसी तरह जड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी सी, कौन सी उन्होंने पिता जी? गुरु तेग बहादुर जी। ते वो साडे कितने गुरु ने? 9वें गुरु। So इसी तरह जड़े धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी सी, वो भी प्रचार करने के लिए बहुत दूर दूर गए। They went to far places। ते उन्होंने एक बारी संगत ने कहा कि जड़ी इंडिया का जेड़ा ईस्टर्न पार्ट है, जड़ियां उधरलियां स्टेट्स है, कि इधर प्रचार जड़ा है, इधर बहुत लोड़ है, बहुत सिख संगतां इत्थे रहंदियां हैं। We request you कि तुसी इधर भी आओ, कि तुसी इधर आके भी प्रचार करो। So जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी उधर प्रचार कर रहे थे in the eastern side of India, ठीक है, he reached one of the state, one of the city he reached, the name of that city was Allahabad। की नाम सी सिटी का? जी इलाहाबाद सिटी है ना बच्चे, इलाहाबाद को एक हिंदू सिटी कहा जाता है, जिस तरह से कहना ना अमृतसर गुरुओं की नगरी है। सो इसी तरह भारत के विच जी इलाहाबाद सिटी है उन्होंने हिंदुओं का शहर कहा जाता है। सो उस शहर के विच एक छोटा जिहा टाउन सी, वो टाउन का नाम सी प्रयाग। की नाम सी? प्रयाग। हुण प्रयाग जिहड़ा छोटा जिहा टाउन सी ना, देयर वाज अनदर नेम, उन्होंने लोकी प्रयाग नूं त्रिवेणी भी कहते हैं। यू नो व्हाई कहते, क्यों कहते हैं? एनीवन नोस? त्रिवेणी, त्रिवेणी का मीनिंग क्या होता है? थ्री मीन्स थ्री, थ्री मीन्स थ्री, बेनी मीन्स जिवें सी बेनी नदी कहते ना, बेनी मीन रिवर। सो दिस इज अ प्लेस जिथे के थ्री रिवर्स आके मिलदियां हैं, इस करके इस टाउन नो इट्स आल्सो कॉल्ड त्रिवेणी। सो इथे केड़ी-केड़ी रिवर्स मिलदियां थे? गंगा, जमुना, सरस्वती, वो इस टाउन से जाके मिलदियां ने, इस करके इस टाउन नो त्रिवेणी भी कहा जाता है। सो जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी इस टाउन दे विच पहुंचे, वो किहदे नाल गए? He went there with his mom, with his mother। कौन सी उन्होंने? सॉरी, उन्होंने महल, उन्होंने वाइफ। गुरु तेग बहादुर जी के वाइफ का की नाम सी? किसी को पता? हाँ जी, माता गुजरी जी। ते उन्होंने मदर का की नाम सी गुरु तेग बहादुर जी के? वेरी गुड, माता नानकी जी। से ते उन्होंने पिता जी का की नाम सी गुरु तेग बहादुर जी के? और कोई? गुरु हरगोबिंद साहब जी। वेरी गुड। सो त्रिवेणी में जब गुरु तेग बहादुर साहब जी प्रचार करन गए, उन्होंने नाल उन्होंने वाइफ सी माता गुजरी जी, उन्होंने मदर सी माता नानकी जी, उन्होंने ब्रदर इन लॉ भी सी उथे, एंड हिज नेम वाज कृपाल चंद। पता है किसी को ब्रदर इन लॉ की होंदा है? जानी कि उन्होंने वाइफ के जड़े ब्रदर सी, ठीक है, उन्होंने नाम सी कृपाल चंद, वो भी नाम है किसी। सो वो सारे उस समय एट दैट टाइम देयर वाज अ बिग फेस्टिवल गोना हैपन इन त्रिवेणी। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने उथे की करन गए सी? प्रचार करन गए सी, क्योंकि फिर मेला लगना सी। देयर वर लॉट ऑफ पीपल गोना कम एंड दैट्स अ गुड टाइम व्हेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, इट्स अ गुड टाइम टू डू प्रचार, ठीक है। सो उस जगह के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी ने थोड़े दिन ही स्पेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ते उस तो बाद जड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी सी, वो त्रिवेणी तो ही वेंट ऑन विद फ्यू संगत मेंबर्स, वो चले गए ढाका वाल। ढाका इज द, किसी ने सुनिया वर्ड? सिटी, ओके। सो दैट्स अनदर प्लेस। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। सो नाम हम ज्योग्राफी भी लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो जड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी सी, वो अगे प्रचार करने लई उधरली साइड पे चले गए, ते जड़े माता नानकी जी सी, माता गुजरी जी सी, कृपाल चंद जी सी, ते होर संगतां जड़ियां नाल सी, they went from Tribeni to Patna। But what happened at Tribeni? At the place of Tribeni, it was that place जिथे के गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी माता गुजरी जी दे वॉम किहनूं कहंदे? पेट, ठीक है, उन्होंने गर्भ दे विच आ गए सी, ठीक है। सो त्रिवेणी वाज द प्लेस जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी माता गुजरी जी दे गर्भ विच आ गए सी। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने सफर ते चले गए, ते जड़ी बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली दैट वेंट टू पटना साहिब। एंड देन यू नो कि पटना साहिब इज द प्लेस जिथे के गुरु गोबिंद सिंह जी दा की होया? की कहना सी वर्ड? प्रकाश होया, ठीक है। सारे नु पता ना शब्द तही प्रकाश हमारा
हमारा पयो अगे अगे किनू आंदा तही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखै पावे। ठीक है जी। सो पटना शहर जड़ा उत्थे बाद संगतां पहुंचियां ते उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दा प्रकाश। सो आई एम नॉट गोना गो इनटू द डेट्स। सो इट्स सेड कि जड़े मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दे से कि पो सुदी 7वीं नु जड़ा कैलेंडर हैगा ओदे अकॉर्डिंग पो सुदी 7वीं नु उन्हां दा प्रकाश जड़ा अमृत वेले पटना शहर की धरती ते होया। एंड आई एम गोना गिव यू अ टास्क हियर। ठीक है। वो थोड़ा एक होमवर्क होएगा कि उनका प्रकाश जड़ा पटना साहब किथे रहे कि जिथे उनका प्रकाश होया। सो वो केड़ी फैमिली दे घर रहे? सालस राय जौहरी। सालस राय जौहरी। वैसे कोशिश करया करो नेक्स्ट टाइम ब्रिंग सम नोटबुक जिथे तुसी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स या न्यू टर्म्स जड़ियां सीखदे हो कीप ऑन राइटिंग दैट एंड यू कैन डू मोर रिसर्च आफ्टर यू गो बैक होम। सो तुम्हारा टास्क ये है कि तुसी सालस राय जौहरी बारे सर्च करनी है कि हु वाज ही। उन्हां दे घर विच प्रकाश होया। ठीक है। सो सालस राय जौहरी वाज द पर्सन जिहड़े कि गुरु नानक देव जी नूं ही उन्होंने दर्शन कीते सी। ठीक है। सो उन्हां बारे तुसी सर्च करनी है। ओके। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ पटना साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी दा प्रकाश होया। कोई गया उत्थे? हाथ खड़ा करो इफ यू हैव बीन टू पटना साहिब। कोई गया पटना साहिब? मवीन गए। ठीक है। सो सी ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ক্লোਜ਼ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਫॉर 30 ਸੈਕਿੰਡਸ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਟੂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे फिजिकली जाना बहुत जरूरी है बट लेट्स ट्राई एक बार फोकस करके देखो कि कोई धरती है पटना साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दा प्रकाश होया असी मना रहे हैं इस मंथ दे विच। कोशिश करके देखो कि सानू कोई फीलिंग आती है सोच के। हो सकता थोड़े च कोई रूह आउण जिन्हां नूं वाकई फीलिंग आ जाए है ना बट मोस्टली मेरे वर्गियां नूं नहीं आती। सानू अखां बंद करके देखो गुरु साहब साडे ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਲਿਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਟ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ we have not reached that. Maybe some of you, I'm not talking about everyone, but ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ blessed soul ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ blessed soul ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ blessed soul ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ he was sitting more than 800 kilometers away from the place of prakash but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ because his mind he was not physically there but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। अजे लोगों को पता नहीं लगा कि कोई गुरु गोबिंद सिंह जी दुनिया च आ भी गए है प्रकाश होया ना बट उन्होंने दर्शन हो गए। सो वी गोना लर्न अबाउट दैट। ठीक है। सो दैट इज आवर गोल साडा की है कि सानू दर्शन करने आ जाए सानू दर्शन करने की जड़ी डिजायर है दैट कम्स इन आवर माइंड। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ गोल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दैट इज द पर्पस। सो दिस इज द नेम रिटन। हो सकता बहुत सारे ने साखी भी सुनी होगी बट जिस तरह मैं पहला कहा कि we gonna learn something new out of what we already know. So ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? Yeah, I want everyone to keep your both ears open, not like मेरी साउंड नहीं सुननी सिर्फ. If you are listening, you have to respond. ठीक है? Okay. So पीर भीखन शाह कौन सी? पीर भीखन शाह जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੀਰ ਸੀ। ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ whatever is written what is Quran? Quran is
ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਆਫ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਵ ਸਮਵੇਅਰ in a village between, which is on the way between Patiala and Ambala. So between Punjab and Haryana ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸੀ, he was also a teacher, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਵੇ ਹੀ also used to teach students ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਐਸ ਹਿਜ਼ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ अर्ਲੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੂ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ that Makkah is in the west, so they pray in the direction of west ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। So one morning, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the same morning, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, there were many students who were watching him, and they suddenly saw something different has happened today. And what was that different thing? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, rather than praying in the west direction, he is praying towards the east. They are like, oh, what's going on? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, like he is such an old teacher and he has so many years of experience, but ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? So ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ after so much time passed, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, he is ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸਟ ਵੱਲ। he did ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। So he did that ਨਮਸਕਾਰ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 times। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਨ and he is doing his own prayers every single day, but what is happening? So I've written few words here ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਏ। one of the emotion ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, that is called ਬੈਰਾਗ। what is that called? ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਬੈਰਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। when you love someone so much that you can't think of living without that person even for a minute। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ that is the end। ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਟੇ ਵਿਦਆਊਟ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, that was the level of it, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਗ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਰਟਨ here ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਸਕਿਪ ਕਰਾਂਗੀ ਵੈਸੇ ਸਲਾਈਡਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਨ ਕਰਕੇ। ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ present,
इट्स नॉट जस्ट आवर फिजिकल बॉडी। ठीक है, हुण की होया, ਉਹਦੇ मन च हो गया कि मैं ते हुण दर्शन करने हैं। अमृत वेले वो प्रेयर कर रहे हैं, ਉਹਦੇ मन च एकदम आया कि परमात्मा आ गया पटना साहिब। हुण उस वक्त उन्हें कहा कि आपां ते हुणे ही जाना, वेट नहीं करनी, ये नहीं कि चल हफ्ते का हो जाएगा तुरदे नहीं। उन्होंने मन च डिजायर आ गई, मैं हुण दर्शन करने ने गुरु साहब की, जी सोल पवित्र आत्मा जी इस धरती से आ गई है, मैं उसके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने उस वक्त अपनी तैयारी की, एक उन्होंने कुरान ली, जो प्रेयर वाला मैट होंगे, तो सम वैरी जी अर्जेंट चीज़ा होंगे लैके उन्होंने, तो नाल अपने 2 क्लोजेस्ट स्टूडेंट्स जो मोस्ट ओबीडियंट जो क्लोज है जेसी स्टूडेंट्स, उन्होंने लैके वो अपनी जर्नी से तुर पे कि मैं हूँ दर्शन कर जाने, पटना साहिब जाना। देयर इज अनदर फूड फॉर थॉट। फिर सोचने वाली गल है, कई बार असं सोचते ना कोई चंगा काम करना है, मन च ख्याल होता है कि नहीं कोई चंगा काम करने का, बट फिर असं कहते नहीं चल कल कर लाँगे, परसों कर लाँगे। न्यू ईयर आता, वी से मेरे रेजोल्यूशंस आई एम गोना डू इन दिस न्यू ईयर, आई एम गोना डू दिस थिंग, तो असं डिले करते करते हफ्ता 10 दिन 20 दिन पता नहीं फिर भूल जाते हैं। बट पीर भीखन शाह के मन में आया कि मैं दर्शन करने, ही डिड नॉट डिले दैट थॉट, उन्हें उसी वक्त तैयारी की एंड ही एम्बार्क्ड ऑन दैट जर्नी, उन्हें जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो गुरबाणी च लिखा है, नह बिलंब धर्मन बिलंब पापन, कहते चंगा काम करन नूं बिलंब होंदा डिले, चंगा काम करन नूं देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, जेड़ा काम बुरा बिलंब पापन, पाप का काम करने लगे हमेशा डिले, डिले की करना तो है ही नहीं ना। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट इज रिटन इन गुरबाणी। ओके जी, हुण जर्नी जी है बिगिन हो गई है, रस्ते में बहुत सारे पिंड आ रहे हैं। सो देखो पंजाब तो कितने जाना, हम पटना साहिब विच इज इन बिहार स्टेट, तुर के जाना, वो तो किहड़ा हवाई जहाज है या कोई ट्रेन चल रही है, नथिंग। सो तुर के अपने स्टूडेंट्स के नाल शुरू हो गई उन्होंने जर्नी। रस्ते च रिवर्स आ रही हैं, क्रॉसिंग द रिवर्स, क्रॉसिंग विलेजेस, ओनली द थॉट दैट इज इन द माइंड ऑफ पीर भीखन शाह, की थॉट आ रही है उन्होंने मन दे विच, धन सो वेला जित दर्शन करना। सिर्फ उन्होंने मन यही फीलिंग है कि मैं गुरु साहब जी जड़े आ दर्शन करने हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा फास्ट करांगी क्योंकि हम टाइम थोड़ा रह गया। हुण जी इट टुक 3 months, 3 महीने लगे पीर भीखन शाह को उत्थे पहुंचने के लिए, अप्रोक्सीमेटली कह रही हूं मैं, अबाउट 3 months। सो दैट मीन्स बाय द टाइम पीर भीखन शाह रीच्ड पटना साहिब, व्हाट वुड बी द फिजिकल एज ऑफ बालक गोबिंद राय? 3 months। ठीक है ना, वो पटना साहिब की धरती से जड़ा है वो पहुंच गया, ते पहुंच गया सार की किया पीर भीखन शाह ने, जी सोटी नाल फड़ के तुर रहे सी, उन्होंने साइड पे रखी, तो उन्हें पटना पहुंच गया सारे, उन्होंने नमस्कार किया धरती का, नमस्कार अगेन मतलब मत्था टेकिया कि थैंक यू गॉड कि तुसी मैनू इस धरती पे पहुंचाता है। एंड देयर इज अनदर फूड फॉर थॉट फॉर अस इंक्लूडिंग मी। ਅਸੀਂ जाने ना, ਅਸੀਂ कहने कि ਅਸੀਂ डायरेक्ट फ्लाइट ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ गए, ਅਸੀਂ कभी साडे मन चाहता है कि नहीं, साडे मन च इन्ने दर्शनां की तांघ हो रही होवे कि नहीं अमृतसर कहने नगरी, गुरुआं दी नगरी, कभी साडे मन चाहता है कि जहाज तो उतरे ते नहीं जी पहला मैं दरबार साहिब दे दर्शन करने, फिर मैं घर जाके रोटी खानी। डज इट एवर कम? नो, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ एज वेल, जस्ट थिंक अबाउट दैट, है ना। ਅਸੀਂ कभी सोचा कि ਅਸੀਂ जहाज तो उतरे, ਅਸੀਂ अमृतसर बस साडी फीलिंग कभी आई है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ जहाज तो निकल के? नहीं ना आगे, ਅਸੀਂ जानते की करते हैं। So this is a question to our own self। हर किसी के अपने thoughts होंगे, ठीक है, मेरे भी अपने मनी मेरे भी चाहती है कि nothing that like that comes, है ना। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰग ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ पहुंच गए जी, एक सेल्फी ले लिया, that's what I do, ठीक है ना। सो यही होता ना। बट देखो अपने आप को लेके जाओ, पीर भीखन शाह उन्हें पहुंच गया साहब, अजय गुरु के घर नहीं पहुंचा, he hasn't reached, he hasn't done दर्शन, उन्हें सिर्फ धरती पर पहुंचे, तो उन्हें क्या कि धरती इन्नी सोहनी, गुरु परमात्मा इत्थे आ पहुंचे। हुण पुछते कि आस सो मेनी विलेजर्स के कित्थे है जी आ घर, जिथे बालक गोबिंद राय जी ना उत्थे आए ने ना, उन्होंने सारा पूछा एंड इवेंचुअली ही फाउंड
that door. उन्होंने पता लग गया कि सालस राय जोरी इत्थे इस घर जिथे रह रहे ने, this family, so he reached there. हुण की हुंदा सी, गुरु घर दे बाहर रोज मेला लगा हुंदा सी, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े लोड़वंद needy people, they used to come at the door of Guruji to get money, food and whatever. ठीक है, they used to come over there. So today Pir Bhikhan Shah and his two students, they just sat on one side of the door while waiting कि जरा रश इत्थे पिया होया है, भीड़ है, let it go. ठीक है, वो उन्होंने वेट की थी कि वो चले जाए. And just before that I forgot one thing. ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ, उन्होंने ये भी किया कि गुरु साहब तुसीं मैनूं इत्थे पहुंचाता है, हुण मैं फूड एंड पानी उदों ही लवांगा जदों मैनूं हुण फिजिकली भी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मन करके दर्शन तो हो गए सी उन्होंने, बट उन्होंने कहा कि हुण जदों तक मैनूं उन्हां दे चरनां दा दर्शन नहीं मिलते, आई विल नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग. चलो भीड़ चली गई. एंड देन जिहड़े मामा जी सी ना, कौन सी मामा जी? मामा जी कौन सी? कृपाल चंद. ओके, सो कृपाल चंद जी ने देखा कि सारी भीड़ चली गई, पैसे देते सारे को, ये इकल्ले बैठे हैं, तो लेट मी गिव सम मनी टू देम. सो ही वेंट टू देम टू गिव सम मनी, बट पीर भीखन शाह very humbly said, he said, no, I have not come here for money or any material things. All I have come here is for the blessed darshan of that incarnation. मैं उस पवित्र आत्मा के दर्शन करना आया वहां जेडी के तुहाडे घर विच आई है. एंड ही इज द गॉड हिमसेल्फ, ही इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. ते मैं उन्हां दे दर्शन करन जड़ा वा इत्थे आया, मैनूं पैसे कुछ होर नहीं चाहिदा, ते मैनूं सिर्फ उन्हां दे दर्शन करा दो. कृपाल चंद जी ने सोचा चलो ठीक है, मैं फैमिली नाल डिस्कस कर लेना इफ वी कैन डू दैट, क्योंकि अजे तक इट वाज 3 months गॉन, बट 3 महीने तक अजे तक किसी ने नहीं, इवन पटना की संगत ने नहीं बालक गोविंद राय जी के दर्शन नहीं किए सी अजे. ठीक है ना, बहुत क्योंकि ठंड भी बहुत सी, तो सारे सोचते सी पता नहीं मुगल कौन दुश्मन आ जाए, सो दे वर स्टिल वेटिंग. अजे तक किसी लोकल संगत ने भी दर्शन नहीं किए सी. इट वाज ओनली द फैमिली मेंबर्स, वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स. सो उन्होंने कहा मैं सलाह करके आई विल कम बैक टू यू. सो सारा दिन बीत गया, पीर जी उत्थे ही बैठे हैं एंड ही इज डूइंग हिज प्रेयर. टस तो मस नहीं हुई, he did not move even an inch. उत्थे ही बैठे हुए ने. ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ आई डोंट नो whether कि ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਪੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, he might be an enemy. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. तो उन्होंने कहा तुसी कुछ ना फूड कुछ पैसे दवो ते उन्होंने वापस भेज दो, ते उन्होंने को थोड़ी देर बाद आयो तुसी आफ्टर सम टाइम. मामा कृपाल चंद जी फिर ट्राई करन लगे, ही गोस बैक अगेन टू ट्राई दैट अगेन. तो फिर कहते हैं कि समझाने की कोशिश करते कि जेड़ा बालक है बहुत छोटा है, ही इज ओनली 3 months old, ही इज जस्ट लिटिल चाइल्ड, राइट. एंड कहते जे उनके फादर भी इत्थे नहीं आ, तुसी आफ्टर फ्यू मंथ्स या कुछ थोड़ी देर बाद आयो जदों उन्हां दे फादर उन्हां दे कोल होणगे. पर जिहड़े हुण पीर भीखन शाह सी, he was very humble and he understood what are the family concerns. but उन्होंने अपने मन च आख्या कि जिन्हां नूं तुसीं 3 महीने का बच्चा कह रहे हो, वो फिजिकली भावें 3 महीने के बच्चे तुहानूं लग रहे हैं, बट वो ते गुरु बाप है, he is the God himself. क्योंकि उन्होंने पता है कि ये गॉड है, ये क्या नहीं कही जा रहे 3 महीने का बच्चा है ना. so that was something came to his mind. so इस तरह 1-2 बार होया. ठीक है जी, I'll skip few slides. इस तरह फैमिली जो देखा, फैमिली ने बार-बार मिन्नतां कीतियां, तो देखा कि वो खा भी नहीं कुछ नहीं रहे, एंड ही इज नॉट इवन मूविंग एन इंच. पीर जी एक बुजुर्ग ने, उस वक्त उस महीने में ठंड भी बहुत पै रही सी, बट दे सॉ कि ही इज नॉट मूविंग इवन अ इंच. एट लास्ट ਜਿਹੜੇ मामा जी सी, उन्होंने माता जी को कन्विंस कर लिया. उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाकई एक रबी रूह है. ठीक है, उन्होंने फेथ होती है. आई थिंक वी शुड लेट हिम हैव द दर्शन ऑफ बालक गोविंद राय. जो फिर सुनिया उन्होंने कि नहीं इतने दिन हो गए एंड ही स्टिल हैविंग इन हिज फेथ, फिर प्रैपरेशन स्टार्ट हो गई. माता नानकी जी ने कहा जे ये गल वा ना, फिर असं इंज करते हैं, असं ओपन दर्शन कर देंगे हैं.
कले पीर नूं नहीं, जिहड़ियां लोकल संगतां वां तुसीं एक पंडाल लगाओ, पुट अप अ टेंट एंड देन वी विल हैव ओपन दर्शन ऑफ बालक। ते उन्होंने कहा ठीक है जी। हुण सारे अनाउंसमेंट शुरू हो गईयां कि जिहड़ा जी हुण बालक गोबिंद राय उन्हां दे दर्शन करन दा संगतां नूं सद्दा आया है, दे कैन कम फॉर द दर्शन ऑफ बालक। हुण ते टेंट लगाता गया, रबाबी कीर्तनीय बुलाए गए उत्थे। जिहड़े मामा जी सी, I'll see if I have a picture. Yeah. So जिहड़े मामा किरपाल चंद जी सी, उन्होंने बालक नूं गोदी च लैके वो टेंट दे विच एक सोहणे जिहे पलंग ते बैठ गए। सो सारियां संगतां आई गईयां उत्थे, ठीक है, सारियां संगतां आई गईयां दर्शन करन नूं। उन्होंने देखिया कि पीर जी नहीं आए अजे तक। वेयर इज पीर जी, जिहड़े जिन्हां करके बाकी संगतां नूं भी दर्शन हो रहे अर्ली, वो कित्थे रह गए। उन्होंने मैसेज भेजिया कि तुसीं भी दर्शन करन लई आ जाओ, नाउ इज द टाइम, ठीक है जी। सो अगेन वो इन्ने खुश अंदरों, मतलब उन्होंने खड़े हुए, उन्होंने थैंक यू किया अपने मन के विच अगेन, ठीक है। तो उन्होंने दर्शन करने के लिए पहुंच गए पीर भीखन शाह। बट पीर भीखन शाह दी नज़रां कित्थे, उन्होंने नज़रां बालक के नाल नहीं मिलाइयां, अखां फेस ते नहीं देखा, उन्होंने चरणों वाल। चरण की होंदे हैं? द फीट्स ऑफ द गुरु जी, ठीक है। चरणों वाल उन्होंने नज़र हैगी सी कि मैनूं दर्शन हो गया। अंदर वो इन्ने ज़्यादा, मतलब we can't express the emotions that पीर भीखन शाह had at that time। ते जिहड़े बालक गुरु गोबिंद राय उन्हां दी भी फीलिंग्स देखो, कहते जो उन्होंने पीर जी को देखा ना, वो इस तरह जंप करन लग पे कि जिवें लाइक ही वांटेड टू कम इन द गोदी ऑफ पीर भीखन शाह। उन्हां दी गोदी विच आण लई जिवें बच्चा करदा ना किसी दी, कि सामने मम्मा आ जाती है तो मैं कहां भुड़क के चल जावां, देखो द सेम वे जिहड़े वो बालक गोबिंद राय जी सी, ही वाज प्रिटेंडिंग लाइक उन्होंने पीर भीखन शाह की गोदी विच जाना चाहते हैं, भी उन्होंने भी इन्नी खुशी हुई। देन देयर वाज अनदर थिंग, जदों पीर भीखन शाह अपनी जर्नी लिए स्टार्ट किया से, अपने घरों तुरे सी, उन्होंने मन च एक क्वेश्चन सी कि जिहड़े गुरु गोबिंद राय जी, जिहड़ी ये परमात्मा का रूप इस धरती पर आया है, ये हिंदुओं की रक्षा करेगा कि ये मुसलमानों की रक्षा करेगा। सो टू हैव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ही ब्रॉट टू कुजे। कुजे पता क्या होंदे हैं? जिहड़े मिट्टी के टू, जिहड़े आपां कहंदे आ मिट्टी के टू बाउल्स, द काइंड ऑफ बाउल्स असीं कह सकते हैं, वो लैके आए। Some books say कि उहदे विच दुध सी, विच पानी सी, but there is a different version in different books. So let's say कि दो कुजे लेके आए ते उन्होंने अपने मन दे विच सोचिया सी कि जे गुरु साहब एक लैफ्ट के उपर हथ रख लैणगे, दैट मीनस जे पानी उपर रखणगे ते ये हिंदुओं की रक्षा करने लई आए आ, ते जे ये दूध वाले ते रखणगे ये मुसलमानों की रक्षा करने लई आए आ। सो उन्होंने वो क्वेश्चन बोल के नहीं दसिया गुरु गोबिंद साहब जी नूं, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। He just had that question in his mind only। ते उन्होंने जाके वो कुछ जड़े आ वो बालक दे के इंज कर देते, सामने इंज कर दे, ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर। ते बालक ने की किया जी? सो बालक गोबिंद राय ने दोनों हाथ दोवां कुजियां ते रख दिए। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सारियां दी सांझे ने। He is not of any one faith, he belongs to everyone। And there was another magical thing happened at that time। 3 महीने दे बालक गोबिंद राय जदों उन्होंने अपने हाथ रखे ना कुजियां ते की होया, जिहड़े वो पीर जी सी उन्होंने इंज लगा जिवें 10 मन के पता नहीं कितना भार, इट्स अबाउट 40,000 kilograms of weight has been put up on that kuje। But he got his answer। उन्होंने अपने आंसर मिल गया कि he is the voice of voiceless and protector of the weak। So last one, so this is about the इहो जी साडे गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हां दा प्रकाश पुरब असीं इस महीने मना रहे हैं। सो उन्हां बारे जदों तुसीं किसी नूं प्यार करदे ना, यू फील लाइक लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट दैम, ठीक है। तो असीं वही साखी पढ़ रहे हैं कि प्रकाश होया, पटना साहब होया, ये माता पिता सी, बट उहदे विचों भी असीं कितनियां नवीं गल्लां जिहड़ियां सीख सकते हैं। सो टुवर्ड्स द एंड धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, धन पीर भीखन शाह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक पवन गुरु पाणी